Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। I'm so happy to once again come and minister to you this morning. एक बार मैं बहुत खुश, इस बार मैं बहुत ही खुश हूँ कि आकर फिर से मैं आपकी सेवा कर सकूँ। I'm really getting a lot of good feedback to my messages. मेरे संदेशों के लिए मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। And people have been blessed with what God has been speaking to them through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर जिन लोगों से बात कर रहे हैं उसके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं। My focus and my desire is that people come closer to the Lord Jesus Christ and feel the presence of God in their life. मेरी इच्छा और मेरा लक्ष्य यही है कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करें और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को पाए। I will be very glad that everyone who has been blessed with the word calling us and telling me that they have been blessed with the word. और सच में मैं बहुत ही आशीषित हूँ कि जिन लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाई वो मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने वचन के द्वारा आशीष पाई है। When you call on us and tell us that God has blessed you, it encourages me and then I know that I'm really speaking the word of God. और जब आप बताते हैं कि आपने आशीष पाई है, ये मुझे प्रोत्साहित करता है कि निश्चय में परमेश्वर के वचन में से बता रहा हूँ। So it helps me to wait more on God and listen to the voice of God and minister to you so that the word which I speak is not just empty words, but it comes with a power, with a demonstration of power and the spirit in your life. और इसलिए जो वचन मैं बोलता हूँ ये तो केवल ऐसे वचन नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और उसका प्रगटीकरण आपके जीवन में होता है। I don't believe in giving messages. मैं संदेश देने पर विश्वास नहीं करता। Because once person came and said, "Sir, your sermon was very good." क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने आकर कहा कि सर आपका संदेश तो बहुत ही अच्छा था। I replied to him and I said, "My dear, God can use even a donkey." मैंने उसे प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर गधे का भी उपयोग कर सकता। I am not interested how good a sermon I preach. मैं इस बात में दिलचस्पी नहीं लेता कि मैंने कितना अच्छा संदेश प्रचार किया। But I am more concerned about the outcome. लेकिन मैं उसके परिणाम के बारे में ज़्यादा परवाह। My question is, how many of you have feel the presence of God? मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है। And how many of you are convicted by the Holy Spirit? और आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा कायल हुए हैं? If that doesn't happen, अगर ये नहीं होता है then there is no point in me preaching the word. तो फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं कि मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ। Because I've looked into the history of many men of God. मैंने परमेश्वर के बहुत से दासों के इतिहास को देखा है। I do not know how many of you knew Charles Finney. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग चार्ल्स फिनी को जानते हैं। The 18th century evangelist. ये तो 18वीं सदी के सुसमाचार प्रचारक हैं। He was known for his prayer life. वो अपने प्रार्थना के जीवन के लिए जाने जाते हैं। He used to go to the jungle वो जंगल में जाते थे and used to go to the jungle in the early mornings at 4 o'clock and he used to pray very loudly. और वो सुबह सुबह 4 बजे जंगल में चले जाते थे और जोर से बोलते हुए प्रार्थना करते थे। People were able to hear his cry even near city. जो पास ही का शहर था उसमें भी लोग उसकी आवाज़ को सुन सकते थे। And when Charles Finney came out from his prayer, और जब चार्ल्स फिनी अपनी प्रार्थना से बाहर आते and when he came to the city, और जब वो शहर में आते he never preached. वो कभी प्रचार नहीं करते थे। He just looked at people. वो बस केवल लोगों को देखते थे। People came under the powerful conviction of the Holy Spirit. लोग तो पवित्र आत्मा की बहुत ही महान कायलता में आ जाते। They used to fall on their knees and they used to cry for their sin and they used to cry for their repentance. वो तो अपने घुटनों पर आ जाते और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए वहाँ पर पुकारने लगते। That is the kind of person I want to be. मैं इसी तरह का व्यक्ति होना चाहता हूँ। Otherwise there is no point in preaching the word. नहीं तो फिर वचन प्रचार करने में कोई मतलब ही नहीं रहा। I am
least interested. I'm very reluctant every Sunday to go and stand before people if the presence of God does not come with me. अगर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में नहीं आती है तो मैं तो सच में जाकर प्रचार करना भी नहीं चाहता। Even when I appear before TV, if the Lord does not come, I don't want to, minister if the presence of God does not come. और यहाँ तक कि जब मैं टीवी पर आता हूँ तो सच में जब तक कि परमेश्वर की उपस्थिति ना आए तो मैं सच में सेवा भी नहीं करना चाहता। Because I don't want to rely on human wisdom. क्योंकि मैं मनुष्य की बुद्धि पर आधारित रहना नहीं चाहता। Because however good I may be, and if I'm going to preach with my human wisdom, it is not going to affect you. क्योंकि चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूँ, मनुष्य की बुद्धि में अगर मैं प्रचार करूँगा या बताऊँगा तो निश्चय इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। But if I come before you in my weakness and with complete surrender for the Lord to speak to me, then I'll be a blessing to you. और अगर मैं नम्र होकर अपने पूरे समर्पण के साथ आऊँगा तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Because in Jeremiah chapter 1, the Lord said, I'll put my words in your mouth. क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे मुंह में अपने वचन रखूंगा। I'm encouraged when people call me and say that when you come on TV, I put my fingers on your lips and I put it back on my lips and say, Lord, put the same words in my mouth. और लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि टीवी पर जब आप आते हैं तो मैं अपना हाथ आपके मुंह पर रखता हूँ, फिर अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मेरे मुंह में भी ऐसे ही वचन दीजिए। So that is the kind of person I want to be. मैं ऐसा ही व्यक्ति बनना चाहता हूँ। I don't believe in going after popularity. मैं शोहरत के पीछे जाने पर विश्वास नहीं करता। I am not a popular preacher. ना ही मैं विख्यात प्रचारक हूँ। Nor do I desire to be a popular preacher. और ना ही मैं कोई विख्यात प्रचारक बनने की इच्छा रखता हूँ। More than becoming a popular preacher, I want to be a preacher who will be proximity to the presence of God. विख्यात प्रचारक होने के बजाय मैं ऐसा प्रचारक होना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन के लिए सच्चा हो। Because if I am able to bring the presence of God before this TV audience, I know that is going to be a blessing in your life. क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं टीवी देखने वाले दर्शकों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर उपस्थिति को लेकर आऊं तो निश्चय ही इनके जीवन को आशीष देगा। So my humble request is, if you tell me I really feel the presence of God, मेरी नम्र विनती ये है कि अगर आप मुझसे ये कहें कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की, that will encourage me and I know that I am in the proper track and I know that I am bringing the presence of God. और ये मुझे प्रोत्साहित करेगा और ये बताएगा कि मैं तो सही रास्ते पर हूँ और यही परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आएगा। There is a lady very close to Nagpur. नागपुर के पास में एक बहन है। Her name is Girija. उनका नाम है गिरिजा। She calls me Dada. वो मुझे दादा कहती हैं। She says, Dada, whenever you come on TV, I feel that somebody is touching me. और उन्होंने कहा, दादा यानी भैया, जब भी आप टीवी पर आते तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे छू रहा है। And whenever you come on TV, I said, this is my Dada, and I call a big crowd and ask them to see, this is my Dada, and I want all of you to see what he is saying. और जब भी मैं टीवी पर आता तो वो अपने सभी लोगों को बुलाती और कहती, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं चाहती हूँ कि आओ और ये क्या कह रहे हैं उसे आप सुनो। Please don't misunderstand me. कृपया मुझे गलत मत समझिए। I don't desire popularity. मैं शोहरत नहीं चाहता। I always believe that everyone as a believer should learn to go directly to the presence of God. मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वासी के नाते हर एक व्यक्ति को ये सीखना होगा कि वो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। I discourage people to call me a pastor. कई बार लोग जब मुझे पास्टर कहते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसा मत कहिए। Because the title of a pastor is very, very important. क्योंकि जो पास्टर का शीर्षक है ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Unfortunately, the definition of the pastor has been misrepresented. दुर्भाग्यवश जो पास्टर की जो परिभाषा है वो गलत तरीके से बताई जा रही है। People think pastor is a person that you should give.
लोग ये सोचते हैं कि पास्टर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें देना चाहिए, But the Bible is very contrary to that belief. लेकिन बाइबल इस विश्वास के बिल्कुल विपरीत है। The pastor is a person is equivalent to a shepherd. पास्टर जो है वो तो चरवाहे के जैसा है। Yes, people, the pastors call their congregation as my shepherd, और लोग my sheep. और पास्टर जो है वो लोगों को यानी सभा के लोगों को कहते हैं कि ये तो मेरी भेड़ें हैं, But they don't want to be in the position of a shepherd, लेकिन वो चरवाहे के ओहदे पर रहना नहीं चाहते हैं। because it's very unfortunate that pastors think they are in a very high pedestal and that everybody should come and give everything to them. और ये दुर्भाग्य की बात है कि सब लोग ये सोचते हैं कि पास्टर तो बड़े ऊंचे पद पर है और सभी को उनके पास में आकर उन्हें कुछ देना चाहिए। But the Bible talks very contrary to that belief. लेकिन बाइबल इस विश्वास के बिल्कुल विपरीत ही बताती है। If you read Psalm 23 अगर and आप verses 1, अगर आप भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 पढ़ेंगे, it says, "The Lord is my shepherd and I shall not want." ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी न होगी। My dear pastors, मेरे प्यारे पास्टर्स, if you call yourself a pastor, you are a shepherd. अगर आप खुद को पास्टर कहते हैं तो आप एक चरवाहे हैं। So, you are not a person to get, but you are a person to give. आप तो लेने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप देने वाले व्यक्ति हैं। That is what Jesus said. Jesus said, "I am the shepherd and you are the sheep which I provide you all the need." और यीशु ने कहा है कि तुम मेरी भेड़ें हो और तुम्हारी हर एक जरूरत मैं पूरी करता हूँ। That is what David the psalmist said. और दाऊद जो भजनकार है उसने यही तो कहा है। He said, "The Lord is my shepherd. I have everything I need." उसने कहा कि परमेश्वर मेरे चरवाहा है और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब मेरे पास है। Are you that kind of pastor? क्या आप इस तरह के पास्टर हैं That you'll take care of the needs of people? कि आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करेंगे? Or are you a pastor who demands people to take care of your need? या फिर आप ऐसे पास्टर हैं जो लोगों से मांग करते हैं कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करें? My friend, if you are that kind of pastor, you have to change your mindset. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह के पास्टर हैं तो आपको अपनी मनोदशा बदलनी चाहिए। Because, see, who is your source? क्योंकि देखिए आपके स्रोत कौन हैं। You know, the word Abba ये शब्द अब्बा in Hebrew हिब्रू में doesn't only mean father, इसका केवल पिता ये अर्थ नहीं होता है, but it means also the source. लेकिन इसका ये भी अर्थ होता है कि वो स्रोत हैं। Who is your source? आपके स्रोत कौन हैं? Are your sheep क्या आप भेड़ हैं? or is your father? क्या आपकी भेड़ें आपका स्रोत है या फिर आपके पिता आपके स्रोत? That is the kind of fallacy and misinterpretation of the word of God, and people think as a leader they are eligible for all the benefits from their congregation. और यही तो हो रहा है और यही तो दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपनी सभा के अगुवों के ऊपर इस तरह से देखते हैं। Now, the Bible says in Psalm 23, "Goodness and mercy shall follow you all the days of your life." बाइबल कहती है कि आपके पूरे जीवन भर भलाई और करुणा आपके साथ साथ चलती रहेगी। But it's very unfortunate. पर ये दुर्भाग्य की बात है। The pastors' fraternity, I don't condemn all the pastors, but many of them, they run after goodness and mercy. देखा जाए तो मैं पास्टर पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन निश्चय उनमें से बहुत से जो है वो तो केवल भलाई और करुणा के पीछे भागते हैं। If God is your source, अगर परमेश्वर आपके स्रोत हैं, why do you have to fundraise? तो आपको फंड रेज करने की जरूरत क्या है? Why do you have to put your QR code on the TV? क्यों आपको अपना QR कोड टीवी पर रखना है? If people are stirred in their heart, अगर लोग अपने हृदय में उत्साहित होते हैं, God will make them give. तो परमेश्वर उन्हें देने लगाएंगे। Let us go to Exodus and see what happened to the people of Israel. आइए निर्गमन में जाकर देखते हैं कि इस्राएली लोगों के साथ में क्या हुआ। When the people of Israel left slavery and God brought them into freedom,
जब इस्राएली लोग वहाँ पर गुलामी से निकले, बंधुआई में से निकले और परमेश्वर उन्हें आज़ादी में लेकर आए, God stirred the hearts of the Egyptians to give gold and silver to them. परमेश्वर ने मिस्री लोगों के हृदय को उकसाया कि वो अपना सोना और चांदी उन्हें दे दे। When they were living in slavery and bondage, they were filled with poverty. और जब वो वहाँ पर गुलामी में और बंधन में जी रहे थे, वो तो गरीबी से भरे हुए थे। The moment they came out of slavery and bondage, जिस पल वो गुलामी और बंधन में से बाहर आए, they were filled with riches. वो तो धन संपत्ति से भर गए। So you don't have to run after that. तो आपको इसके पीछे भागना नहीं। Yes, goodness and mercy, wealth and riches should follow you. जो भलाई और करुणा है और उसके साथ में धन संपत्ति जो है वो तो आपके पीछे पीछे आएगी। The people of Israel had the shadow, you have the substance. और इस्राएली लोगों के पास में तो केवल परछाई थी, लेकिन असली चीज तो आपके पास है। So let us translate, give this a spiritual interpretation. तो चलिए इसका आत्मिक अर्थ देखते हैं। If you come out of your bondage of slavery and sinful life, अगर आप अपनी गुलामी के बंधन में से और पाप में जीवन में से बाहर आते हैं, you are bound to receive spontaneous blessing from people. तो फिर निश्चय आप लोगों से निरंतर आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे। You don't have to say, I am doing ministry, why don't you send, God will bless you. That is nonsense and stupidness. और आप ये नहीं कहिए कि मैं तो सेवकाई कर रहा हूँ, क्यों ना आप मुझे कुछ पैसा भेजे, मेरी मदद करे। ये तो पूरी तरह से मूर्खता है। Because Bible says very clearly in Psalm 17:5, it says, cursed is the man who put the trust on man. भजन संहिता अध्याय 15 वचन 5 ये कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। If you are not able to trust God for paying for your TV broadcast, better not broadcast, because you are maligning the name of God. अगर आप अपने टीवी के प्रसारण का पैसा नहीं दे सकते हैं तो मत प्रचार कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। If you are not able to stand in faith and trust God for God to be your source and be the provision for your blessing, for your financial blessing, then please don't malign the name of God. अगर आप निश्चय परमेश्वर को अपना स्रोत, आशीषों का मुख्य स्रोत नहीं बनाते हैं तो कृपया परमेश्वर के नाम को बदनाम मत कीजिए। The Bible's psalmist says, I think it's in Psalm 20, it says, some trust in horses, some trust in chariots, but my trust is in the name of the Lord. भजन संहिता में ये लिखा है कि कोई घोड़ों पर तो कोई रथों पर भरोसा रखता है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर पर के नाम पर भरोसा रखता हूँ। I don't care whoever you are. मुझे परवाह नहीं कि आप कोई भी क्यों ना हो। You may be the most popular minister in the whole world. शायद आप इस पूरे संसार में सबसे विख्यात प्रचारक हो। Don't make your God a beggar and you don't become a beggar. आप अपने परमेश्वर को वहाँ पर भिखारी मत बनाइए और आप खुद भिखारी मत बनिए। Don't say this is the week for fundraising and don't make the ministry so cheap. आप इस तरह मत कहिए कि ये हफ्ता तो फंड रेजिंग का है, आप सेवकाई को इतनी घटिया मत बनाइए। You know, it's very unfortunate. They quote the Bible. You know, one person he quoted Deuteronomy chapter 1 verses 11. और देखिए एक प्रचारक ने इस तरह से व्यवस्था विवरण में से एक वचन ये प्रचार किया। Said if you according to Deuteronomy 1:11 you will have 1,000-fold blessing. So if you send money in the denomination of 111 rupees or 1,111 rupees or 1,11 rupees, you will get 1,000-fold blessing. और उन्होंने इस तरह से कहा कि आप 1,001 या फिर 10,001 या फिर 1,01,000 रुपया अगर आप भेजेंगे तो आपको 1,000 गुना आशीष मिलेगी। What a stupid, you're making the ministry a marketing place. आप तो सेवकाई को मार्केट की जगह बना रहे हैं। May God have mercy on such people. परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करे। And they repent for what they are talking about. और वो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए पश्चाताप करेंगे। If you are not able to trust the Lord, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, and if you think you are running a big ministry, और आप ये सोचते हैं कि आप बड़ी सेवकाई चला रहे हैं, you better not do it. तो अच्छा है कि आप इसे ना करें। Because people will not be blessed.
क्योंकि लोग आशीष नहीं पाएंगे। I know many people, people are very foolish in this world. मैं जानता हूँ इस संसार में लोग तो बहुत ही मूर्ख होते हैं, Because they have this greed in them. क्योंकि उनमें ये लालच होता है They make the Lord a partner. और वो तो परमेश्वर को काम करने वाला बना If देते I give so much, God will give me so much. हैं। और हम अगर इतना देंगे तो परमेश्वर मुझे इतना देंगे। That should not be a criterion. और ये आपका काम करने का तरीका ना हो। You should give with a gratitude, not to expect anything. आपको तो सराहना की भावना से देना है और कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करनी है। If you are doing it with ulterior motives, then that is why many people who believe such people who use this kind of trick for fundraising, many of them get disappointed. और इसीलिए ऐसे लोग जो इस तरह से फंडरेजिंग करते हैं तो उनमें से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। Psalm 125 is very clear. भजन संहिता जो है ये 125 बहुत ही स्पष्ट है। The verses 1 it says, "They that trust on the Lord are Mount Zion; they shall not be moved or be shaken." और ये वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के जैसे, वो बलवान होंगे, सामर्थी होंगे और वो हिलाए नहीं जाएंगे। Is God? I'm asking everyone. No, maybe you're a pastor, maybe you're not a pastor, maybe you're a minister, or maybe you're doing God's work. Is God like Mount Zion in your life? आप शायद परमेश्वर के दास होंगे, प्रचारक होंगे, और शायद परमेश्वर आपके जीवन के स्रोत है, आपको खुद से पूछना है। I translate this verse into my local circumstances. मैं अपने लोकल परिस्थिति में इन वचनों का अनुवाद करता हूँ। I come from a place called Shahdol in Madhya Pradesh. मैं मध्य प्रदेश के शहडोल शहर से आता हूँ। So I interpret this verse in this way. और मैं इस वचन का इस तरह से अर्थ लगाता हूँ। They that trust upon the Lord are like Mount Amarkantak. और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो तो अमरकंटक पहाड़ के जैसे होते हैं। They shall not be moved or shaken. वो तो ना हिलेंगे ना हटेंगे। The second verse says, as the mountain Amarkantak surrounds Shahdol, the Lord surrounds his people. और जैसे पहाड़ अमरकंटक जो है वो शहडोल को घेरे हुए है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को घेरे रहते हैं। My friend, if you cannot trust God, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, then why do ministry at all? तो फिर सेवकाई ही क्यों करते हैं? Go and sell bananas. आप जाके केले बेचिए। You will get some profit and you can support whatever you do. तो आपको उससे कुछ लाभ मिलेगा और आप जो कुछ भी करते हो उसमें आपकी मदद होगी। When I wanted to get into the ministry, जब मैं सेवकाई में आना चाहता था, I told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, Lord, I've seen many of the pastors who are going out with a begging bowl. मैंने कहा, प्रभु मैंने बहुत से ऐसे पास्टर्स को देखे हैं जो कि भीख मांगने के कटोरे के साथ जाते हैं। I said, I don't want to be a person like that. मैंने कहा मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहता हूँ। I said, when I start the ministry, मैंने कहा जब मैं सेवकाई शुरू करूँगा, I should be a giver, not a taker. तो मैं देने वाला बन जाऊं, लेने वाला ना बनूं। See, what you desire, God will do it. देखिए, आप जो भी इच्छा रखते हैं परमेश्वर उसे पूरी करेंगे। And what I desired, the Lord did it. और जो भी मैंने मनसा की थी परमेश्वर ने उसे पूरा किया। I support many people with my resources. मैंने अपने स्रोतों के द्वारा बहुत से लोगों की मदद की है। When people come on TV and they said, if you give this ministry, God will bless you abundantly. और वो ये कहते हैं कि अगर आप इस सेवकाई को देंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। I never claim like that. मैंने कभी इस तरह से कोई दावा नहीं किया। Because no person will be able to replace the God of heaven and earth for me. क्योंकि इस पृथ्वी पर का कोई भी व्यक्ति मेरे लिए परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं बदल सकता। Because even people listen to my voice on the TV. क्योंकि यहाँ तक कि जो लोग मेरी आवाज़ टीवी पर सुनते हैं, I help them. मैं उनकी मदद करता हूँ। I am not relying on them. मैं उन पर आधारित नहीं हूँ। Many of them, they are stirred and they give. और बहुत से लोग प्रोत्साहित होते हैं और वो देते हैं।
that is going to be a blessing. वो आशीष होगा। See, I'm not against receiving, funds from people. I'm not. Please don't misinterpret me. और देखिए, मैं यहाँ पर लोगों के लिए फंड रेज नहीं करता, मुझे गलत मत समझिए। But it should come from their deep inside their heart. ये तो उनके हृदय की गहराई से आना चाहिए। Because if what you speak is a blessing to them, then automatically, spontaneously, God will move their heart. और फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे वो निश्चय उनके लिए आशीष होगा और परमेश्वर अपने आप ही उनके हृदय में काम करेंगे। If you are blessed with this word today, अगर आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है, please don't keep quiet but call on us. तो आप कृपया शांत मत बैठिए, हमें फ़ोन कीजिए। Our cell phone is on the screen. हमारा सेल फोन नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहा We है। are available 24 hours 7. हम 24 घंटे सातों दिन आपके लिए उपलब्ध हैं। We are not here to be served but to serve. हम यहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं। That is the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण My बात dear है। pastors, my friends who are in the ministry, please don't make yourself, so big that people should serve you. मेरे प्यारे दोस्तों, पास्टर्स और मेरे जो मित्रगण हैं जो सेवा करते हैं, आप इस तरह से खुद को मत बनाइए कि लोग आपके पास God has आएं। called you to serve because Jesus said, I have come to serve, not to be served. और परमेश्वर ने आपको सेवा करने के लिए बुलाया। यीशु ने कहा, मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करवाने नहीं आया। If you are blessed with this word, अगर इस वचन से आपने आशीष पाई है tell God, तो परमेश्वर से कहिए, Lord, I am blessed. प्रभु मैंने आशीष पाई I है, repent of my sin. मैं अपने पापों से पश्चाताप, I want to accept you as my personal savior. मैं आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना I चाहता want हूँ। to trust you like Mount Zion. मैं सियोन पर्वत के जैसे आप पर भरोसा I रखना चाहता don't want to be like people हूँ। मैं लोगों के जैसे नहीं होना चाहता and not to trust on man, और मैं मनुष्य पर भरोसा but नहीं रखना I चाहता, want to trust on you. पर आप पर भरोसा रखना चाहता Let हूँ। us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful word. स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते इस अद्भुत वचन के लिए। I believe many of them are being blessed. मैं विश्वास करता हूँ कि इनमें से बहुत से लोग आशीष पाए हैं। I know there are many people who are kneeling down before the TV and they are crying for mercy before you. और मैं जानता हूँ इस समय बहुत से लोग टीवी के सामने आपके सामने झुके हुए हैं प्रभु, वो आपको पुकार रहे हैं कि आप उन पर दया करें। There is a person called Mohan. एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहन, He is desperately calling on the name of God. वो तो बेताबी से परमेश्वर के नाम को पुकार रहे हैं। And God says, if you trust me, I will exalt you. और परमेश्वर ये कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। May the Lord bless all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष In दे। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। To be like Jesus.